Good morning, everybody. Now I am going to start the topic which we were talking about on the class in Friday's class. We have seen the meaning of coefficient of variation. This coefficient of variation is also called Karl Pearson's coefficient of correlation. It is also called Karl Pearson's coefficient of correlation because it was coined by statistician whose name was Karl Pearson. Okay? And it is a relative measure of this person. It is a relative measure of this person. Okay. Now let's see how do we find out coefficient of variation. Okay. This helps us in finding out whether you are playing in a proper manner or not. Your pattern of playing is sustainable or consistent or not. Whether you are making 100 runs or near about 100 runs always, or sometimes you can make 100 runs, sometimes you become out of the match because you can make on you are totally out हो गए पूरी तरह से जीरो पर चले गए तो sometimes you can make 0 runs, sometimes you are able to make 100 runs, sometimes you can make only 4 to 5 runs, and sometimes you can make near about 100 runs, that is 92 or 90. So it is called inconsistency in your making score, in your run making. So coefficient of variation tells us whether our performance is sustainable or consistent or not. कंटिन्यूटी उसमें है कि नहीं, ठीक है। हम अपने मार्क्स स्कोर करने में सारे टेस्ट में तुम अच्छे मार्क्स लाते हो, सारे टेस्ट में तुम अच्छे मार्क्स लाते हो तो तुम्हें कहा जाएगा योर परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंट, you are performing very well, your performance is consistent, you are studying on sustainable manner, because in every test and exams you are able to maintain your status. तुम्हारा एकेडमिक स्टेटस बहुत अच्छा है इसलिए तुमको कभी 40 में 38 मिलता है, कभी 40 मिलता है, कभी 39 मिलता है, बहुत कम हुआ तो 35 होता है. It means consistency is there in your marks. ठीक है, तो in this case value of coefficient of variation will be less. Listen it carefully. If your performance is good and it is on the same scale, then value of CV or the coefficient of variation will be less. Okay? Now come to the just opposite situation where one student is not able, one student is in your class who is not able to make the good marks always. Sometimes he can get 40 out of 40, sometimes he or she gets only 15 or 20. Same students can get 38 in one test, in another test he or she can get only 10. It means there is no any consistency or sustainability in his or her studies. In such a situation, CV will be high. CV will be high. तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा रिपीटेडली मैनर में, कंटिन्यूटी में तुम्हें हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वेरिएशन कम है. वेरिएशन मतलब होता है ऐसे करके, वेरिएशन मतलब ऐसे फ्लक्चुएशन, तो तुम्हारे मार्क्स में वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है. तुम हमेशा मतलब एक जैसा मार्क्स लाते हो, चाहे अच्छा मार्क्स ला रहे हो हमेशा या हमेशा खराब मार्क्स ला रहे हो. अच्छा ला रहे हो तो हमेशा अच्छा ला रहे हो, पढ़ने में बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो. खराब ला रहे हो तो पूरे टाइम खराब ला रहे हो, तो तुम्हारा पुअर परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी है. ठीक है, तो इसके केस में सीवी हमेशा कम रहेगा. लेकिन अगर जस्ट अपोजिट केस कर दिया जाए, sometimes you are scoring very good marks,
समटाइम्स यू गेट वेरी लेस मार्क्स, इसके केस में सीवी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हेल्प्स अस in indicating whether our performance is consistent or not, ठीक है। हमेशा अच्छा होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छा 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 अच्छा, सीवी का वैल्यू कम, अच्छा खराब अच्छा खराब अच्छा खराब अच्छा खराब, सीवी का वैल्यू ज्यादा, ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आई हैव रिटन वन क्वेश्चन, एंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन two times we have to solve standard deviation, two times we have to solve arithmetic mean, two times we have to solve CV, ठीक है, because we have to make comparison between two teams who are going to play in one match, or we have to compare between two sections 11A and 11B अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर हमेशा दो कॉलम रहेगा शुरू में ही, यहाँ से सुनो, क्वेश्चन में हमेशा दो कॉलम होगा, और दो क्यों, टू मेक कंपैरिजन, कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, सेक्शन साइंस का अच्छा है कि कॉमर्स का अच्छा है। इंग्लिश के मार्क्स में या आईटी के मार्क्स में, आई एम नॉट टेकिंग आउट द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज इकोनॉमिक्स इज नॉट बीइंग studied in science section, it is only in the commerce section, so I cannot take the example of accountancy, physics, chemistry and PhD, eco and bio or math. So but English is a common subject and IT is too a common subject in science and commerce both section, so I am taking the example of IT or the English। तो दोनों क्लास के बच्चे हैं, 11A है 11B है, तो 11A के बच्चों ने इंग्लिश में मार्क्स लाया, 11B के बच्चों ने इंग्लिश में मार्क्स लाया, ठीक है। और अब कंपेयर करना है कि विच सेक्शन इज गुड, विच सेक्शन इज गुड, हु विल हेल्प, सीवी। सीवी इज अ डिवाइस, कोफिशिएंट ऑफ विच इज डिवाइस which can help us to tell whether section A is performing well or section B is performing well। चलो अब पहले मैं एक तुम लोग को सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, जो भी हो, ठीक है। सेक्शन ए में मार्क्स दिया 6 8 10 12 14, सेक्शन बी में जो मार्क्स है वो 4 6 8 10 12 है। सीवी निकालो, कौन सा बेटर है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट व्हिच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट, फाइंड आउट व्हिच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट। तीन बच्चे अभी और हैं। फाइंड आउट व्हिच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट, क्या करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसका मीन निकालोगे तो इसका मीन हो जाएगा 8 और 20, ये 50 हो गया सम ऑफ x, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला है x बार का सम ऑफ x बाय n, तो सम ऑफ x इज 50, 50 by 5 that is 10, आ गया 10। अब 10 से डेविएशन निकालोगे, 10 से डेविएशन निकालोगे तो 6 minus 10 that is d, 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10 minus 2, 10 minus 10 0, 1 minus 10 2, 40 minus 10 4। now find out the d square, इस d निकाल लिया मैंने, d आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, formula of standard deviation in individual series, mind it that it is not a discrete series because frequency is not given here, it is only an individual series because marks of two different sections are given, so frequencies are not given here, so obviously it is an individual series, and in case of individual series the formula of standard deviation is under root sigma d square by n। इसका निकाल लो, इसका 4 4 the 60, 2 to the 4 0 2 to the 4 4 4 the 60, सम करो 16 4 20, 16 4 20 40, यहाँ पर आ गया 40, ठीक है। अब 40 के लिए इसको हम करते हैं 40 by 8, सॉरी 40 by 5, 40 by 5 that is 8, so under root of 8, under root of 8, root of 8, तो 8 का रूट हो गया 9,
चार पॉइंट तो 2 इधर 64 क्या दिस इज 32 और 6 38 384 तो 8 तो 384 दैट इज 16 मैम 2.828 आएगा 2.82 तो 2.8 में आ गया 2.82 अब इसका रब कर देना इसको अब ये हो गया 2.82 इट इज 2.82 तो भाई ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना और हमें निकालना है सीवी तो सीवी का फॉर्मूला है निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन 5x बार into 100 जल्दी से बताओ तो कितना आएगा 2.82 by मेन है 10 into 100 कितना आएगा 28.2 आएगा 28.2 आएगा ना तो ये हो गया 28.2 ठीक है एक पहले मुझे इसका आंसर तैयारी करने दो 28.28% 28.28% इट इज सीवी ध्यान में रखो सारे बच्चे कॉपी पेन लो और इसको लिखो कि सीवी आया 28.28%. 28.28%. If you are not able to see the board, write the value of CV. It is 28.28. ठीक है अभी कितना मैं मिटा दे रही हूँ इसको चलो चलो नहीं मिटा अब इसका सेक्शन बी का निकालो सेक्शन बी का सेम प्रोसेस जरा कर दो सारे लोग सेक्शन बी का सेम प्रोसेस इसका नहीं निकालो तो जल्दी से 40.5 that is 8 x bar is 8 अब 8 से इसका डेविएशन करो 8 से डेविएशन इसका 10 8 आ गया अब इसका 6 minus 8 minus 2 0 ऊपर हो जाएगा 3 4 में गया 8 minus 4 3 में गया 8 minus 2 0 10 में गया 8 2 1 में गया 8 4 स्क्वायर निकालो 4 4 the 60 2 2 the 4 0 2 the 4 4 4 the 60 और 40 इसका तो 40 आ रहा है इसका 40 आ रहा है 40 तो 40 का मतलब है फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन किसका सेक्शन बी का तो ये हो गया 40/5 तो सेम आ रहा है 8 आ रहा है इसका भी 8 ही आ रहा है अंडर रूट 8 यानी इसका तो 28.28 एक मिनट को चेक कर लेते हैं हाँ 2.82 इसका भी 2.82 दोनों का 2.82 दोनों का 2.82 ठीक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो दोनों का सेम हो गया इसमें दिया है 2.82 ए का 2.82 और बी का भी दिया हुआ है 2.8 अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है किसका सीवी निकालो इसका सीवी y का y मतलब सेक्शन बी का तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.82 by mean is 8 its mean is 8 बिकॉज़ ऑफ हॉटस्पॉट तुम लोग फिर मत करना हॉटस्पॉट की क्वेश्चन तुम लोग एक के बाद एक उसको सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा ठीक है सीक्वेंस में ऐसे करते हैं ये यहाँ 28.28 सीवी है यहाँ से देखो बच्चों ये नहीं कहना कि मैंने तो हॉटस्पॉट पूरा कर दी ये पूरा सीक्वेंस में है सीवी आया सेक्शन ए का 28.2 ठीक है अच्छा अब इसके बाद 2.82/8 into 100 ये कितना आ रहा है 35.25 30 समथिंग है 28.28/8 282/8 282/8 8 for the 8 to the 24 30
ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2.82, सेक्शन ए का सीवी आया 28.28, लिखो इसको साइड में 28.28, ये सेक्शन ए का है। सेक्शन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो आया था 2.82 पहले की तरह, ठीक है, लेकिन इसका सीवी आया 35.2, 35.2। सेक्शन ए का 28, 35.35। सेक्शन बी का 35.2, whose performance is better and why? Section A because its inconsistency is less. हाँ, section A's performance is good and consistent because the question is find out which section is more consistent. So section A is more consistent because its coefficient of variation is 28.2, which is lesser than that of section B. ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर। क्या करना है, करना क्या है, मान लो कि एग्जाम में दो कॉलम दे दिए, ठीक है, किस चीज का कॉलम दिया हुआ है, हटाओ उसको, छोड़ो उसको, दो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज अगर है तो सेम प्रोसेस से करोगे, पहले मीन निकालोगे दोनों का, मीन से डेविएशन निकालोगे, डेविएशन का स्क्वायर करोगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर सीवी निकालोगे एक का, दूसरे का भी सेम प्रोसेस, मीन निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, सीवी निकालोगे। अब जिसका सीवी कम होता है ना, उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होता है, अच्छा होता है। Is that clear to all? Is that clear to all? पता है Yes, ma'am. मैम व्हाट विल हैपन इफ बोथ सेक्शन हैव सेम वैल्यू? मैम मतलब दोनों सेक्शन का अगर मैम सेम वैल्यू हो जाएगा तो क्या होगा मैम? तो दोनों सेक्शन अच्छा हो गया। मान लो कि ए का 28.2 है, मान लो क्या है ये, तो सेक्शन मैम का भी मान लो कि मतलब 28.2 है। मैम बोलना था कि इस सिचुएशन में मैम हम मतलब किसको अच्छा कहेंगे? मतलब फिर मैम मतलब ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग देखेंगे मैम। मतलब मैम दोनों सेक्शन में सेम वैल्यू है और मैम उसका जब हम सॉल्व करते हैं तो सीबी भी सेम ही आता है, तो मैम हम उस सिचुएशन में मैम किसको कंसिस्टेंट बोलेंगे? Both are equal. Both are equal. CV of class 11A is 28.2. CV of class 11A is also 28.2. Which one is better? यस उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। Both performance उसमें is देखो good, वीडियो है नहीं is दिखा। equal. तो आंसर क्या होगा? Both the sections are performing consistently. तो अगर सेम होगा तो सेम आंसर हो गया कि दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल है, सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कम ज्यादा होगा तो दिखेगा क्या कम है, उसका ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा, सिंपल। देखो शिवम, ठीक ठीक है। मैम फिर से पता रिपीट नहीं कर नेट दीजिए मैम, नहीं कुछ है, पता नहीं बहुत चला। प्रॉब्लम। दोनों सेक्शन का सीवी एक आमी जैसा जी है, हुआ था जो कि क्वेश्चन कर रहे हो, दोनों सीवी का एक जैसा है, मतलब दोनों का 28.2 है और दूसरे का भी 28.2 है, दोनों का 28.2 है। किसको तुम अच्छा बोलोगे, तुम किसको खराब बोलोगे शिवम, बोलो। दोनों अच्छे, दोनों का परफॉर्मेंस मैम दोनों इक्वल है तो मैम दोनों को अच्छा बोलेंगे। यस मैम, होगा ना, यस दोनों मैम। का अच्छा होगा ना, तो दोनों का अच्छा होगा तो ठीक है। लेकिन तुमको ऐसा क्वेश्चन जनरली मिलेगा ना, ठीक है। होता क्या है, एक का कम एक का ज्यादा होगा ही होगा, एक का कम एक का ज्यादा बिल्कुल होगा। अगर नहीं होगा, इन केस अगर दोनों का सेम वैल्यू आ जाए, do not worry, you have to write that both sections are performing well because CV of both section is similar, is same, so both are performing well in a same manner. तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यस मैम। तुम लोग एक काम करो जरा, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो और मुझे जल्दी से बताओ तो। Write the question. CV of two series. Everybody write down the question. CV of two series. What is called CV?
व्हाट इज कॉल्ड सीवी? शामिली, शाश्वत, बोलो, व्हाट इज सीवी? Everybody silent. Come on, any one of you can answer. What is called CV? Ma'am, repeat the question, please. What is called CV? मैम कोफिशिएंट ऑफ हाँ, yes. coefficient of variation. हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक बात पता है, अगर तुमसे इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाए, इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछा जाए व्हाट इज सीवी, क्या आंसर करोगे? लेट मी नो, क्या कहते हो देखते हैं। अगर इंग्लिश में जब तुमको पढ़ाया जाएगा वहां पे सीवी टर्म यूज होगा, वहां मत कह देना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो टीचर जो स्टार्ट थिंकिंग हाँ सीवी क्या होता है, सीवी वो तो अपना सब्जेक्ट का लेंगे ना। बताओ तो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सब्जेक्ट में सीवी क्या होता है? इट इज एन अनदर नेम ऑफ बायोडेटा। इट इज एन अनदर नेम ऑफ बायोडेटा। सीवी मीन्स कैरिकुलम बीटा, ठीक है? इट इज कॉल्ड कैरिकुलम बीटा। व्हाट इज कॉल्ड कैरिकुलम बीटा? कैरिकुलम बीटा मीन्स बायोडेटा। It means if you apply to a company to join it, then that company will ask you to submit your biodata. That is also called curriculum vitae. It is also called curriculum vitae. Curriculum CURRICULUM, curriculum vitae VITAE. ठीक है? तो कैरिकुलम बीटा मतलब होता है बायोडेटा। तो सीवी का फुल फॉर्म इकोनॉमिक्स में होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और सीवी का इंग्लिश में, एक्चुअली ये इंग्लिश भी नहीं है, ये कॉमन टर्म है, कैरिकुलम बीटा मींस बायोडेटा। तुम कहाँ से पढ़ाई किए हो, कितना मार्क्स मिला, किस किस कंपनी में तुमने काम किया, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, ये सारा बायोडेटा होता है, वो सारा कैरिकुलम बीटा होता है। चलो वो मैं ऐसे आउट ऑफ सिलेबस में बात कर रही थी। राइट द क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन। सीवी ऑफ टू सीरीज, सीवी ऑफ टू सीरीज इज given as 48% and 60%, 60% and standard deviation is given as 24 and 15, 24 and 15 respectively. Find out arithmetic mean. जल्दी से आसिफ, भव्य, हर्ष, मुस्कान, शामिली, शाश्वत, शिवम, उज्जवल, उत्कर्ष, and of course Shivam Kumar Raj is still outside the room. Yes, coming. He is not coming to the class. तो ठीक है, वो तो क्या आंसर होगा? देखिए भाई, सीवी का पता है? मैम फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 50, yes. और मैम सेकंड का आंसर हो जाएगा 20। शाबाश। पहले का होगा 50। मैम फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 50 और सेकंड का हो जाएगा 25। हाँ, पहले का होगा 50, दूसरे का होगा 25। गुड मैम व्हाट अबाउट और 25। क्या आसिफ, मुस्कान? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 24 और 15, और सीवी ऑलरेडी दे दिया है। सीवी परसेंटेज टर्म्स में देता है 48% है, 60%। सीवी 48% है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 24 है, तो उसका मीन कितना होगा? दूसरे का 60% सीवी है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, तो उसका मीन कितना होगा? मुस्कान, शामिली, समझ में आया? मुस्कान देखो, सीवी दिया हुआ है सीवी एक का दिया हुआ है 48%, ठीक है? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 24। तो कह रहा है कि बताओ इसका मीन कितना है, बताओ इसका मीन कितना है। तो भाई इसका मीन कैसे निकालोगी मुस्कान?
बताओ। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय x बार इनटू 100। ये फॉर्मूला है। जिनका सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ देखो, जिसका सॉल्व हो गया बहुत खुश मत हो जाओ, क्योंकि अभी और भी टेढ़ा क्वेश्चन है मेरे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। अब निकालना है इसको, मीन को निकालना है। इसका मतलब x बार इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय cv। तो cv हो गया cv इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 24 24 दिया हुआ है। बोर्ड पर देखो सारे बच्चे, cv का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 निकालना है मीन। बाकी जो का वैल्यू गिवन है, तो मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय cv। नीचे को आ जाएगा। अब 24 का स्टैंडर्ड डेविएशन, cv है 48 मल्टीप्लाइड बाय 100। x बार का वैल्यू ये गया 2 से और ये गया 50 से, तो x बार कितना हो गया 50। x बार 50। ठीक है मुस्कान? ठीक है हर्ष? यस मैम। ठीक है यस मैम। चलो ठीक है। पता नहीं तुम लोग क्या समझे क्या नहीं। तो अब तुम लोग जल्दी से 7 to 8 minutes are left. Hurry up, write one more question and try to solve it in the class only. And if you are not finding very fast, then you can take the help of calculator because you are still learning. Question लिखो तो फटाफट। A batsman is to be selected. A batsman, बैटमैन नहीं बोलते हैं, बैटमैन तो चमकारा लग गया ना। A batsman is to be selected for a cricket team. A batsman is to be selected for a cricket team. The choice is between x and y. On the basis of their 5 previous scores. Write down in the first column. Write vertically. In the column of x, write 25. Next 85. Next 40 40. Next 80 80. Next 120 120. 25 85 40 60 120. In the column of y, write down पहला 50, 40 के बाद 60 है 40 के बाद 80, मैम। 40 के बाद 80 25 85 40 40, इसके बाद है 80, लास्ट में 120। ठीक है, x में, y में लिखो पहला 50, दूसरा 70 50 70, नेक्स्ट 65, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 45 45, एंड लास्ट इज 80 80 80। जल्दी से निकालो तो आंसर। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का। हरी अप। Every student is supposed to find out first of all arithmetic mean. Tell me the value of mean. Value of mean of first. Mean निकालो। What is the sum of x? 350. 350. Yes. Sum of x is 350. 350. Good. Sum of x is 350. Mean कितना आएगा? Mean कितना आ रहा है? 70. Yes, good. 70, right. 70. Now draw the column of D and D square.
ये नहीं सोचना कि मैं मेरे घर तो आके देखेंगी नहीं, तो इसलिए शांभवी, हर्ष, भाव्या कॉपी लेके नहीं बैठते हो, कॉपी लेके एकदम नहीं बैठे हो तुम लोग। भाव्या तुम्हारी कॉपी कहाँ है? तुम्हारी कॉपी है भाव्या? Muskan has left the class because I have taken her name. Yes, ma'am. Left the class. Okay. कितना आया? D square. What is the sum of D square? Harsh, square of D. D square का sum बताओ तो, sum of D square. जल्दी जल्दी, अभी केवल 2 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी, कम से कम एक का तो सॉल्व कर लो। डी स्क्वायर का सम डी स्क्वायर का सम, it should be 5750, it should be 5750, 5750। अब एस डी कितना आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 5750 बाय कितना है? 5, 5750 बाय 5, डिवाइडेड कोई नहीं बोल रहे, सब लोग चले गए कॉपी रख के, क्या फोन रख के चले गए? अच्छा ठीक है, चलो चलो इधर कर सकते हैं। अंडर रूट 1150 आ रहा है, अंडर रूट 1150 33.91 है मैम। हाँ 33.91, यस। तो एस सी 33.91 है, ठीक है। करो उत्तर। सीवी कितना है इसका? सीवी एक्स का सीवी कितना है? मेन भी तुम्हारा आ गया, एस डी भी आ गया, सीवी कितना आएगा इसका? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? हर्ष, असीम, शिवाम, तो तुम लोग भी आंसर निकालो ना। सीवी इसका कितना आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 33.9, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 33.91 डिवाइडेड बाय मीन, दैट इज 70, 33.91 बाय 70 into 100 कितना वैल्यू आएगा? 33.91 divided by 70 into 100, that will be the CV. 48.4। हाँ 48.44, yes good, 48.44, ठीक है। जिसने आंसर नहीं निकाला, जिसने कोशिश भी नहीं की, कोई बात नहीं, लिख लो कि इसका सीवी हो जाएगा 48.44 और y का सीवी तुम्हारा आना चाहिए 20.77। मैं पहले बता रही हूँ, क्लास का टाइम हो गया, y बोल दे रही पहले से, जबकि 40 हो गया है, 39। ये 20.77 y का आएगा, सेकंड वाले कॉलम का जो सीवी आएगा वो 20.77% है। तो कौन अच्छा होगा, 48.44 सीवी वाला या 20.77% सीवी वाला? 28.77। हाँ 20.77 है, 20.77 है, तो 20.77 का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और उसी को चुना जाएगा, उसी बैट्समैन को चुना जाएगा, क्योंकि वो रन बनाता है ना, तो आसपास का रन बनाता है और अच्छा रन बनाता है। कभी 100, कभी 50, कभी 70, कभी 65, किसी में वो रहता है। वाई का जो वैल्यू है 50, 70, 65, तो आसपास का अच्छा वैल्यू है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और ये देखता रह जाएगा। Y will be selected as a batsman for the cricket team, but X will not be selected because his runs are not consistent, so he will not be selected for the cricket. ठीक है, चलो ओके बाय, बीएससी में मिलते हैं। टेस्ट का तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट में आएगा, कल टेस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ओके ओके बाय।